Bismillahirrahmanirrahim. Here we are for the theory notes of accounting, part 1. Here is the first topic. The topic is mentioned on the left side, double entry system. Topic 1, of course, the head of account. It starts from head of accounts, asset, liabilities, capital, expenses, and revenues. So types of assets are mentioned, their examples are mentioned. First few questions generally examiner give from the first chapter. Examples are already mentioned in it. You can make notes later. Bookkeeping. Bookkeeping is a detail. The first MCQ generally, first or second MCQ relevant to bookkeeping and accounting. Bookkeeping is a recording of business transaction, whereas accounting uses these bookkeeping records to prepare financial statement. Prepare financial statements. So it's very important, bookkeeping and accounting. Then the financial state accounting equation. Accounting equation, asset equals to capital plus liabilities. Generally, the practical question examiner set on it. Capital and liability is given to you. Asset needs to calculate. Or asset and liability is given to you and they ask you to calculate capital. No issue, sir. The trial balance definition. Trial balance is a list of account balances that a business has. So the purpose of this is to quick review of the whole basic topics. So 9 topics I have selected in this first part. So just review it quickly so that it will be helpful for attempting your MCQs P-1 paper. The purpose of trial balance. Examiner exclusively asks the purpose. The 4 statements will be given. Only one is the purpose of trial balance. Identify the purpose of trial balance. Getting how examiner tested? A, B, C, D, 4 options will be given to you. One is the purpose of trial balance and other 3 are not. So you need to identify which one is and it should be accurate enough. That is to check arithmetic accuracy, and facilitate in preparation of financial statement. The same topic is going on. Now, double entry system. Every transaction affect twice. Every transaction affect twice. One on the debit side, the other one on the credit side. So no need to get confused about debit and credit. Next, debit, credit, okay. Asset liability account. Drawing, when owner withdraw anything from the business for his own personal use. It can be cash, it can be from the bank, it can be goods, it could be asset. Anything owner withdrew from the business for his own personal use, it is called drawing. At the end of the period, asset and liabilities, okay, the entries of purchases, okay, separate account for all purchase, sales, purchase return, sales return. These are for the transaction relevant to goods. Remember, for machine, you keep machine account. Machine purchase, machine sold, machine return, machine. Furniture purchase, furniture account, furniture sale, furniture account, furniture return, furniture account. But goods bought, purchase account, goods sold, sales account, goods returned from the customer, sales return, goods returned to supplier, purchase return. So special respect given to the goods. Carriage is for transportation. Carriage is for transportation. Now, we are moving towards the second topic, book of prime entry. Very important for theory. Very important for theory. Equally for O levels and A levels as well. Specifically, it is not mentioned in A-level syllabus or not a specific question is set on it, but on MCQs, they set.
they set MCQs on book of prime entry sometimes, like invoice, credit note, return, credit note receive, or credit note issued, invoice received, or invoice issued. These type of tricky terms used in AS as well. So all transactions are recorded in the books of prime entry first before recording anywhere in the books. Sales journal to keep the invoice. Sales journal is to keep the invoice, that is sale goods on credit. Whereas credit note is for return. Credit note is for return. Most of the students can get confused in credit note. Credit note, keep it remember, if credit note issued, it is the sales return. If it is credit note received, it will be purchase return. Keep it very clear. Credit note issued or credit note received. Credit note issued is a sales return transaction and recorded in sales return journal, whereas credit note received is a purchase return transaction and has to record in purchases return journal. The same purchase journal, sales return journal, purchase return journals are explained in this slide. A debit note when customer return goods, the customer issues debit note. Customer issues debit note. So these are the slide for documents. Next, ledgers. How many types of ledgers we have? There are 3 types of ledgers: sales ledger, purchase ledger, and journal ledger. If you are going to revise by your own, it may take around 10 days or 20 days to revise these topics. 9 topics I have selected for in this session. But I am going to revise for you. I am giving you the basic notes for you. So it will be revised in 30 minutes, 40 minutes. That's it. Inshallah. So cash account is for cash book. All cash and bank transactions are recorded in cash book. So when we are preparing bank reconciliation, we use the same cash book bank column. We use the same cash book bank column for bank reconciliation. Compare with bank statement. Contra entry, okay, no problem. Checks, credit note, these are the normal transactions. The credit balance in the bank is identified as bank overdraft. If you have a negative balance in the bank, if credit side is more than the debit side, आपने बैंक से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया जितना उसमें था नहीं, तो उसका नेगेटिव बैलेंस आ जाता है. It is called bank overdraft. Cash discount, discount allowed and discount received. Discount allowed आपको पता है हमारा expense है और discount receive हमारा क्या है? Revenue. Discount receive हमारा क्या है? Revenue. Petty cash book is used for small payments in cash. Petty cash book is used in small payment in cash. In single entry topic, AS level pass paper, examiner use the term petty cash. Students confused. कहाँ लेके जाऊंगा सर? क्या है ये petty cash? कहाँ से आ गया? भाई cash in hand है. Petty cash क्या है? Simple cash in hand है. अब current asset है. So examiner use these terminology in O levels and A levels as well. Impress system is used in petty cash. Petty cash book is maintained through Impress system where they need to maintain the float. $500 दे दिए आपको, पूरा महीना खर्च करें. अगर 400 खर्च हो गए एक महीने में, तो नेक्स्ट मंथ वो 400 और दे देगा टू मेक द सेम 500 बैलेंस. ये Impress सिस्टम है जो कहता है बैलेंस हमेशा मेंटेन रहना चाहिए हर महीने के स्टार्ट में.
अगले महीने 350 खर्च हो गए, तो फिर आपका सीनियर आपको कितने देगा? 350, टू मेक द बैलेंस अगेन कितना? 500. That 500 is a petty cash float. It is run according to impressed system. I think that's it. Purchases ledger is maintained for purchases. Of course, इसमें परचेज ट्रांजैक्शन भी आएगी, परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन भी आएगी, सप्लायर की सारी ट्रांजैक्शन परचेज लेजर में जाएंगी. सप्लायर कौन सा सप्लायर? क्रेडिट सप्लायर, जिससे आपने बाय किया है क्रेडिट पे, उसके अकाउंट कहाँ खुलते हैं? परचेज लेजर. और कस्टमर जिसको मैंने सेल किया है क्रेडिट पे, उसके अकाउंट कहाँ खुलते हैं? सेल्स लेजर में. वहीं से बनता है फिर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट. ये बहुत सारे अकाउंट होते हैं ना, छोटे 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 छोटे. हर बंदे जिसको तुमने बेचा है उन सबके अकाउंट खुलेंगे सेल्स लेजर में. वो 5 भी हो सकते हैं, वो 500 भी हो सकते हैं. उनका कंट्रोल अकाउंट एक बनता है. तो उसका कॉन्सेप्ट यहीं से अटैच होता है. सेल्स लेजर, परचेज लेजर आर द लेजर्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स. वन इज फॉर कस्टमर्स अकाउंट, द अदर वन इज फॉर सप्लायर्स अकाउंट. इन्हीं की रिकंसिलेशन के लिए क्या बनाया जाता है? कंट्रोल अकाउंट. गलती तो नहीं हुई कहीं, फ्रॉड तो नहीं हो रहा कहीं. गलती अलग चीज है, फ्रॉड अलग चीज है. अरे गलती अलग चीज होती है और जानबूझ के करना वो फ्रॉड, वो अलग चीज होती है. तो दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या मेंटेन करते हैं? कंट्रोल अकाउंट. So the topic has changed. Now topic number 3, again important for both O levels and A levels. Capital expenditure and revenue expenditure. In a nutshell हम क्या कहते हैं? Sir, these are the capital expenditures are our non-current assets. Are our non-current assets, whereas revenue expenditures are simply our expenses. In a nutshell, कोई लंबी छोटी कहानी का नहीं जरूरत नहीं. आप खुद सोचना यार नॉन करंट एसेट है या नहीं है. मशीन खरीदना, इक्विपमेंट खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, बिल्डिंग का एक एक्स्ट्रा फ्लोर बनाना, इंजन चेंज कर देना, नॉन करंट एसेट है. लंबे अरसे के लिए है, बार बार थोड़ी करूंगा. रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, गाड़ी में फ्यूल डलवा लेना, पेंटिंग करवा लेना, रीपेंट करवाना, रेनोवेशन करवाना, क्लीनिंग करवाना, ऑयल चेंज करवाना, बार बार करते रहेंगे आप. शॉर्ट टर्म है, एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. 1 to 2 questions examiner set in MCQs P-1 paper. Of course, ask in the theory as well. हमारे P2 के अंदर इसकी थ्योरी भी आती है, 2-2 नंबर की, 3-3 नंबर की इसकी थ्योरी भी आती है. And all those initial expenses which are necessary to make the asset workable. वो छोटे छोटे खर्चे जो एसेट को वर्केबल बनाने में जरूरी हो. एसी खरीद लेना सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है. खाली डब्बा पैक एसी तुम्हें ठंडक पहुंचाना शुरू नहीं कर देगा. याद है सर की एग्जांपल? उसको बकायदा आपको ट्रांसपोर्ट करके लाना होगा, इलेक्ट्रिशियन से लगवाना होगा, इंस्टॉलेशन करवाएंगे, स्विच बोर्ड लगाएंगे. ये सारे एक्सपेंसेस एसेट के कॉस्ट का पार्ट है. यस, सम ऑफ द कंपनीज आर गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन सर्विसेज. इट्स ओके, तो आपका एक्सपेंस नहीं हुआ. आपने जो 70,000 पे किए कंपनी को उसी के अंदर शामिल है, लेकिन ट्रांसपोर्ट खुद करवा रहे हैं आप, तो वो आपको लगेगा. एग्रीड? Now, here is the next topic number 4, which is your bank reconciliation. Bank reconciliation. The purpose of bank reconciliation is to compare your bank account of cash book with the bank statement. आपका कैश बुक हाथ से बनाया हुआ, बिजनेस में बैठकर जो आप बना रहे थे, बिजनेस में बैठकर आप अपना कैश बुक बना रहे थे जिसके अंदर बैंक का कॉलम था, उसे हम किससे कंपेयर करेंगे?
बैंकर की दीवी बैंक स्टेटमेंट से, इसे इतना साल होना चाहिए, ये सेम होने चाहिए, वरना फ्रॉड भी हो सकता है। घर का भेदी लंका ठाए। देखिए धोखा होता नहीं है जहां भरोसा कायम हो चुका हो, वरना रहरे गहरे से तो हम बात करना पसंद भी नहीं करते। नेहा बताएं। तो जहां ट्रस्ट डेवलप होता है वहीं ट्रस्ट डेफिसिट होने के चांसेस होते हैं। एग्रीड? सो द इम्पोर्टेंट थिंग सर, दो ही आइटम है जो बैंक कैश बुक में तो होते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अनक्लियर्ड एंड अनप्रेजेंटेड। ये कैश बुक में होते हैं, बैंक स्टेटमेंट में। एक और चीज हो सकती है, एरर ऑफ कैश बुक। कैश बुक में ही होगा, बैंक स्टेटमेंट में नहीं होगा। Is it or not? You have to correct in the cash book. You need to correct it in the cash book. ये जो कैश बुक का एरर है आप कैश बुक में सही करना है। Items in bank statement but not in the, they are 5. 1, 2, 3, 4, 5. An error in the bank. Error of, अगर बैंक ने एरर मार दिया, बैंकर ने गलती कर दी, तो वो भी बैंक स्टेटमेंट में नजर आएगा, कैश बुक में नजर, और इसे बैंक स्टेटमेंट में ही सही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं ओहो बैंक स्टेटमेंट में अब कैश बुक में करो। एरर, एरर को वहां में भेज दीजिएगा, एरर जहां का होगा वहीं सही होगा। कैश बुक का एरर है, सॉल्व विद इन कैश बुक, एडजस्ट योर कैश बुक, करेक्ट योर कैश बुक। If there is a mistake in the bank, for example, bank has charged twice $30, तो आप बैंक स्टेटमेंट में प्लस करेंगे। I repeat again, if the banker has charged, the bank charges $30 twice, ये है कहां पर? बैंक स्टेटमेंट में। कैश बुक में ले जाऊं? जी नहीं, ये एरर है जो बैंक वाले ने किया है, इसको बैंक स्टेटमेंट में ही करेक्ट करना होगा, इसे कैश बुक में लेके नहीं जाना। Let's move, change the topic. कंट्रोल अकाउंट। सर जी ये मैंने खास तौर से आपके लिए ये मेंशन किया है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। कंट्रोल अकाउंट के यूजेस एंड कंट्रोल अकाउंट की लिमिटेशन। बच्चों को यूजेस तो याद होते हैं, आइडेंटिफाई एरर्स, आइडेंटिफाई फ्रॉड्स, टू गेट टोटल रिसीवेबल पेएबल, टू गेट मिसिंग फिगर, 4 ये यूजेस हैं, लेकिन लिमिटेशन याद नहीं होती। तो लिमिटेशन पर्टिकुलरली एग्जामिनर पूछता है, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स, और वो क्या है सर? इन सिंगल एंट्री रिकॉर्ड एरर कैन नॉट बी लोकेटेड। अच्छा एक और बड़ी मजे की बात है, कंट्रोल अकाउंट बना रहा हूं किस लिए? टू आइडेंटिफाई एरर्स, बट इट कैन नॉट इंश्योर यू देयर इज नो एरर। कंट्रोल अकाउंट बना लिया, दोनों बैलेंस भी आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एरर ही नहीं है। ठीक है, किसी हद तक आपका चेक एंड बैलेंस हो सकता है, लेकिन 100% नहीं हो सकता। सेकेंडली, इंडिविजुअल डेटर एंड क्रेडिटर बैलेंसेस कैन नॉट बी चेक। जैसे एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, यहां भी हो गई, वहां भी हो गई, नजर ही नहीं आएगी आपको। एरर्स व्हिच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, errors which do not affect trial balance. So there are some errors which could not be identified through control accounts. बाकी आप सबको पता है सर, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? फॉर रिसीवेबल, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर पेएबल्स। अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि कंट्रोल अकाउंट में ट्रांजैक्शन आती कहां से है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, बकायदा ऑप्शन देता है एग्जामिनर मुझे, तो आप याद रख लीजिएगा, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, कैश बुक जर्नल, एंड फॉर स्मॉल पेमेंट पेडी कैश बुक। चलो एक क्वेश्चन, कंट्रोल अकाउंट में बैड डेट आता है, यस और नो?
क्यों सोच रहे हो? ये रहा, आ गया सर। किस बुक से आता है? मैंने भी 6 बुक्स लिख दी थी, 7वीं बोली थी सिर्फ। मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं आपके सामने कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस बुक से आती है। आ जाएं, चलें, स्मार्टनेस दिखाएं मुझे अपनी। कौन सी क्रेडिट शेयर्स कहां से आती है? जल्दी बोलें। सेल्स जर्नल से आती है। और क्या क्या आता है आपको बताएं मुझे। चेक एंड कैश रिसीव कहां से आएगा? कैश बुक। रिटर्न इनवर्ट्स कहां से आएगा? सेल्स रिटर्न जर्नल। डिस्काउंट लाभ कहां से आएगा? शाबाश जिसने बोला, कैश बुक। बैड डेट्स कहां से आएगा? सेट ऑफ कहां से आएगा? डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड कैश बुक। कैश बुक। लेकिन सर जी बैड डेट और सेट ऑफ कहां से आएंगे? कौन लाएगा ये? तो सर जी बैड डेट्स एंड सेट ऑफ आर टू बी रिकॉर्डेड फ्रॉम जर्नल। सेम केस ऑफ विद परचेज लेजर। तो ये याद रखिएगा, एग्जामिनर ये पूछता है सोर्स क्या है कंट्रोल अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस के आने की, बुक ऑफ पेमेंट्री। और वो स्पेसिफिकली पूछ सकता है कि कौन से ट्रांजैक्शन की क्या सोर्स है। नेक्स्ट द टॉपिक हैज चेंज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, योर फेवरेट टॉपिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बचपन से कर रहे हैं हम। इसमें सर ने छोटी छोटी बातें लिखी हैं जो एग्जामिनर एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकता है या नॉलेजेबल बात है। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके जो आता है, दिस इज कॉल्ड द ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। जीपी तक के पोर्शन को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग सेक्शन। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? जीपी के बाद वाले को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा, इनकम स्टेटमेंट के ऊपर वाले हिस्से को ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे वाले हिस्से को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। ओके, the profit is transferred to the profit calculated in income statement is transferred to capital account. The profit which we calculated from income statement, it is transferred to the capital account. Again, the lower part is called profit and loss account. जो सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं, लाइक स्कूल्स होती हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं, वो कुछ बेचते तो नहीं है, बैंक्स वो सर्विसेज देते हैं, तो उनके लिए ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता। सेल परचेज इन्वेंट्री वाली वहां पे कोई चीज नहीं होती, सिर्फ फी इनकम लेस एक्सपेंस। फी इनकम लेस एक्सपेंस। तो सर्विस इंडस्ट्री के इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। I repeat again, the service industry only prepare profit and loss account section of income statement, क्योंकि उनमें इन्वेंट्री सेल परचेज बेचते नहीं है हम यहाँ कुछ। तालीम से आरास्ता करते हैं इस कौम के नौजवानों को, कोई सोच समझ के ना आए यहाँ पर पैसे देगा और यहाँ पे कुछ खरीद देगा। इल्म बहता है बेटा ऊपर से नीचे तक। बच्चे पूछते हैं ना अक्सर मुझसे, मुजफ्फा वो आपकी क्लास के बच्चे भी कुछ आ गए थे पूछने के लिए। एक क्लास से निकला बाहर, बच्चे आ गए, 2 बच्चे नए नए थे एक ग्रुप में। सर वो आप एक बात पूछनी थी। मैंने कहा जी सर, वो आप नाराज नहीं होइएगा। मैंने कहा नहीं होंगे, पूछ लें। कहने लगे सर आप इतना डांटते क्यों हैं बच्चों को, इतनी बेइज्जती करते हैं। मैंने कहा अच्छा क्लास में बताऊंगा। नहीं 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 क्लास में हमारा नाम नहीं बताएंगे। मैंने आपका नाम नहीं बताऊंगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास में मैं गया तो मैंने बताया, अभी जैसे कुछ मासूम मासूम बच्चे थे छोटे छोटे, मैंने बोला स्टूडेंट की इज्जत ही क्या होती है, इसकी बेइज्जती फील करे वो। हमेशा नीचे रहना पड़ता है स्टूडेंट को, याद रखेंगे। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको झुक के रहना पड़ेगा, अपने साज़ा कराम की इज्जत एहतराम करना पड़ेगा।
खरीद नहीं सकते तालीम को। आप पैसे से किताबें खरीदी जा सकती हैं, तालीम तो नहीं खरीदी जा सकती, इल्म नहीं खरीदा जा सकता। May Allah bless all of you. So the next is statement of financial position, of course, asset, liabilities and capital. Current assets, non-current assets के बारे में define कर रहे हैं, we know it. तो टॉपिक नंबर 6 अगेन कंटिन्यू है, तो मैंने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कौन सा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का नाम क्या है, वो कॉर्नर में मेंशन हो रहा होगा इस पूरे लेक्चर के अंदर। आपको इसी तरह इसे प्रिपेयर करना है। सो अकाउंटिंग पीरियड, आपको एक और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इसके अंदर अप्लाई होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। वी हैव टू कंपेयर इन प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। सेम ईयर रेवेन्यू शुड मैच विद सेम ईयर एक्सपेंसेस। एक और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। Although the life is unlimited, business की life क्या होती है, but we have to break it to understand the progress of the business, to know the performance of the business. We have to break it annually. Accounting period concept, वो कहता है भले आप, हमारी विश है आप जिंदगी भर कारोबार करें, आप नहीं, आपके पोते, आपके बच्चे, आपके परपोते इस कारोबार को भराएं। एक एडवाइस आप लोगों को दे दूं, कारोबार और जॉब के दरमियान डिफरेंस, बिजनेस और जॉब के दरमियान डिफरेंस। एक बंदा ग्लैक्सो कंपनी से रिटायर हुआ डायरेक्टर, उनसे किसी ने पूछा तो बता रहे थे हमें, हम स्टूडेंट लाइफ में थे उस वक्त, तो उन्होंने बाकायदा बताया, दोस्त के वालिद थे, उन्होंने फिर अपनी फार्मा कंपनी खोली। तो कहते हैं जब जो जो उम्र गुजर रही होती है ना आपकी जॉब के अंदर, जैसे आपके बाबा होंगे या मैं हूं या कोई भी है बंदा जॉब कर रहा है, 1 साल हो गया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, एक्सपीरियंस बढ़ता चला जा रहा है, सैलरी बढ़ती जा रही है, फैसिलिटीज बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन याद रखिएगा जो जो उम्र बढ़ती जाएगी नौकरी बूढ़ी होती जाएगी। और बिजनेस की मिसाल ऐसी है, जो जो टाइम गुजरता जाएगा वो जवान ही होता चला जाएगा, उसकी एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन होती जाएगी। जितना वक्त गुजरेगा नाम डेवलप होगा और आगे बढ़ेगा और ब्रांचेस होंगी और एक्सपेंड होगा। तो सोच लें आप कहां होने चाहते हैं, आप कहां रहना चाहते हैं। आप किसी के अंडर होकर काम करना चाहते हैं या अपने अंडर बहुत से बंदे रखना चाहते हैं। May Allah allow you to take good decision for your life, inshallah ta'ala. So adjustments relevant to accrued and prepayments, I hope you know it and you can revise it from this slide also. Income statement, the current liabilities are transferred to statement of financial position. Of course we know it. Accrued के effect क्या होते हैं? Accruals are added in the expenses, prepaid are subtracted from the expenses, so you can revise it from your own, inshallah ta'ala. Advance income, accrued income, not a big deal for you. Next, the adjustments are bad debts. Topic number 7, bad debt and provision for doubtful debt. The new terminology for bad debt is irrecoverable debts. याद रखिएगा आपके पेपर में irrecoverable debts लिखा हुआ आएगा, bad debts लिखा हुआ नहीं आएगा। पुरानी हो गई है bad debt की टर्म, अब क्या लिखा हुआ आएगा? irrecoverable debts. Of course the customer which will not pay you, and debts which are can be recovered also, तो वो तो हमारा bad debt recovered हो जाता है, हमारा फायदा हो जाता है। Provision for doubtful debt may increase or decrease, तो मैंने समझने के लिए आपकी डबल एंट्रीज भी लिख दी हैं। इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, बोले इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, और अगर कम हो रही होगी तो प्रोविजन डेबिट, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। ये डबल एंट्रीज भी एग्जाम में आ जाती हैं, एमसीक्यूज के अंदर आ जाती हैं। द which one of the following is a double entry of provision increase, which one of the following is a bad debt entry, entry तक आ जाती है एग्जाम में। So sir bad debt की entry क्या है? bad debts debit, trade receivables credit, बोले bad debts debit, लेकिन अब bad debt नहीं आएगा, bad debt की जगह क्या आएगा?
इररिकवरेबल डेट्स, इररिकवरेबल डेट्स। अच्छा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये भी मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है यहाँ पर। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्लीज read them. The accounting concepts used in provision for doubtful debt, specifically for provision for doubtful debt के लिए एक accounting concept यूज नहीं हो रहा बल्कि दो हो रहे हैं। नंबर 1 मैचिंग एंड नंबर 2 प्रूडेंस। प्रूडेंस क्यों यूज हो रहा है? प्रूडेंस एस्टिमेशन के लिए यूज हो रहा है। मैचिंग, सेम ईयर रेवेन्यू शुड मैच विद सेम ईयर एक्सपेंसेस, एंड प्रूडेंस एस्टिमेशन। हालांकि एक्सपेंस तब रिकॉर्ड होना चाहिए जब एक्सपेंस होगा, जब एक्सपेंस होगा तब एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन प्रूडेंस कहते हैं अगर एक्सपेंस नहीं हुआ, उसके होने का सिर्फ अभी डाउट है, चांसेस ऑफ एक्सपेंस है, तब भी आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो दिस इज बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। Another interesting topic for the students, it is none other than depreciation. सर, हमारे जिंदगियों के अंदर एक डार्क पीरियड डेप्रिसिएशन का भी है। डेप्रिसिएशन डेफिनेशन बच्चे याद नहीं करते हैं और फिर अपनी तरफ से आए बाएं शाएं करना शुरू हो जाते हैं। जब भी P2 आता है, आपको पता है डेप्रिसिएशन के साथ थ्योरी जरूर आती है, उसकी डेफिनेशन, उसके यूजेस, मेथड्स, सुटेबिलिटी, ओ लेवल्स में भी आती है, ए लेवल्स में भी आती है। 15 नंबर का सवाल, 20 नंबर का सवाल अटैच होता है। पहले 30 के होते थे, तब भी 30 नंबर का पूरा डेफिनेशन आ जाता, पूरा नंबर, एक सवाल 30 नंबर, जाओ ले लो। तो प्लीज आप लोगों ने कोशिश करनी है कि थ्योरी को प्रॉपर प्रिपेयर करना है, एंड दिस इज द राइट टाइम। जून अभी दूर है, मई जून अभी इतना सर पे नहीं आया हुआ, आपके पास टाइम है, आप थ्योरी अच्छी सी प्रिपेयर कर सकते हो। एंड थ्रू दिस टुडेज सेशन इज हाफ डन। आधी थ्योरी लेक्चर्स में मैं आज कवर कर रहा हूं, इंशाल्लाह द रेस्ट ऑफ द पार्ट इन द नेक्स्ट सेशन। सो डेप्रिसिएशन, द मेन इसकी रीजन क्या है सर? फिजिकल डिटोरिएशन, टूट फूट, ज्यादा बुरे तरीके से चलेगी गाड़ी, खराब रोड पे चलेगी तो ज्यादा डेप्रिशिएट होगी। फिजिकल डिटोरिएशन, इकोनॉमिक रीजंस, पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ डिप्लीशन इज अ रीजन फॉर नेचुरल एसेट्स। डिप्लीशन इज अ रीजन फॉर लाइक कोल माइंस वगैरह, एग्रीकल्चर लैंड, वो किस तरह डेप्रिशिएट होती है? वो चल तो नहीं रही लैंड, जो फिजिकल डिटोरिएट तो नहीं हो रही होगी, वो क्या हो रही होती है? डिप्लीट हो रही होती है। जितना ज्यादा उससे खेती बाड़ी होती रहेगी, वो क्या होती रहेगी? डिप्लीट होती रहेगी। मेथड्स कौन कौन से हैं सर? आप सबको पता है, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग एंड रीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। हर छोटी से छोटी चीज मैंने इसके अंदर लिखी है। एग्जामिनर जो जो दे सकता है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। अगर नॉन करंट एसेट सोल्ड होता है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? डिस्पोजल अकाउंट में। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये भी नोट कर लें, कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं इसमें? 3। मैचिंग तो एक्सपेंस की वजह से, सेम ईयर रेवेन्यूज शुड मैच विद सेम ईयर एक्सपेंसेस। प्रूडेंस क्यों यूज हो रहा है सर? बिकॉज डेप्रिसिएशन किसी का भी नहीं बता सकता। एक साल में ये एसी कितना डेप्रिशिएट होगा? $5000। कैसे? आलिम हो, बंगाली हो, क्या हो तुम? एक साल में $1000 डेप्रिशिएट होगा, कैसे बता दिया हमने यार? कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ एन एक्सपेंस। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इसके अंदर? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एस्टिमेशन की वजह से। सर कंसिस्टेंसी क्या होती है? वो जो आप में होती है, आप देख लेना अपने आप को, मजा ले कभी टाइम पे आ जाए। कंसिस्टेंट जहां भी हो, जिधर भी आप बुलाएंगे सर, लेट ही आना है हमें। देखिए इसमें वही बात नहीं होती, इसे कंसिस्टेंसी फॉलो करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कंसिस्टेंसी को अपनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बंदा बस होना चाहिए।
ढीठ, कंसिस्टेंट। सामने वाला कुछ भी कहता रहे, हमें कौन सा फर्क पड़ना है, घर में भी सुनते हैं सर, आपके भी सुन लेंगे। इससे कहां से बड़ी बात है, आप भी हमारे बड़े हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हम आपकी। मैंने आपकी रिवीजन के लिए डबल एंट्रीज भी इसके अंदर दी हैं ताकि आप आराम से इसे रिवाइज कर लें। तो मैक्सिमम 99% मेरी कोशिश है, चले 99 ना सही 90% आप कर लें, कि मैंने कोशिश की है कि इसको मैं कंप्लीट कर लूं। फिलहाल उसके बावजूद अब आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उसमें भी कुछ चीजें आएंगी तो सर उसी वक्त आपको नोट बना देंगे। हर चैप्टर से पहले एमसीक्यूज के बुक में मैंने पेजेस डलवाए हैं, 2-2 पेजेस हर चैप्टर से पहले डलवाए हैं एमसीक्यूज में, वो इसीलिए डलवाए हैं। ये सारी थ्योरी आप उसमें कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर मेरे साथ जब एमसीक्यूज कर रहे होंगे उस दौरान भी अगर कोई ऐसी चीज आ गई, कोई ऐसा नोट आ गया, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी आ गई, ऐसा फॉर्मूला आ गया, तो मैं ऑन द स्पॉट लिखवाऊंगा, ताकि P1 प्रिपरेशन के लिए वो आपके एक एक पेज के नोट बड़े काम आएंगे। कहीं से दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं से कोई आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है। So methods are explained here for your revision. For your revision, I have given this. आप आराम से घर पे कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, डेप्रिसिएबल अमाउंट कैसे निकलती है, एनपीवी कैसे निकालते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या कैसे कैलकुलेट की जाती है, it's all revised for revision. It's already mentioned here. Next, the same chapter is going on. Chapter 8 is depreciation. The 3 slides of the chapter, suitability is very important. ये एग्जामिनर एमसीक्यू में पूछ लेता है कि कौन सा मेथड सुटेबल है, आपको ऑन द स्पॉट पता होना चाहिए भाई। मोटर व्हीकल के लिए कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग या रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग के लिए कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग या रिवैल्यूएशन। सर हम तो कोई भी किसी पे लगा देते हैं। आपने सवाल दिया था ए करो इसका बी करो, हम तो सब लगा देते हैं। वो प्रैक्टिस के लिए था, वो प्रैक्टिस के लिए था। लेकिन लॉजिकली एग्जामिनर, ये पहले अकाउंटेंट्स ने ये ऑर्गेनाइज कर लिया है, अपने पास ये पॉलिसी लगाते हैं। It's not IAS, it is not a rule, it is not a law, but it's a practice. It is practice to apply straight line method for building because it gets same benefit every year. ऐसा नहीं होता 10 साल बाद एक कमरा टूट जाएगा, 20 साल बाद दूसरा कमरा गया, इस तरह डेप्रिसिएशन नहीं होगी। You will have to use the same benefit, same room, same capacity throughout the 80-year life or 100-year life or 50-year life, जो भी लाइफ है। आपने बिल्डिंग की एस्टिमेट कर ली, अब वो पूरी लाइफ तक वो बेनिफिट आपका एक जैसा ही रहेगा। सेम गोस फॉर फर्नीचर। अक्सर मैं एग्जांपल देता हूं फर्नीचर की। 5 सोफा सेट लाए थे अब्बा, हर साल एक टूट रहा है। पूरी फैमिली एक ही में बैठ रही थी, ओके क्या हो यार। So policies, of course we have full year and monthly policy attached with it. No problem sir, inshallah we'll do to it. So chapter 8 has been completed. Now we are at the last chapter. It's a correction of errors. Of course, journal is a book of prime entry for errors and adjustments. याद रखिएगा, ये आप लोग लास्ट टाइम भूल रहे थे कि बैडेड की एंट्री कहाँ बनती है। सब परेशान, कौन सी बुक है जिसमें बैडेड की एंट्री बनती है? ना सेल्स जर्नल, ना परचेज जर्नल, ना सेल्स रिटर्न जर्नल, ना परचेज रिटर्न जर्नल, ना कैश बुक। जर्नल जो कहीं नहीं आता, जर्नल जर्नल में आता है। तो अब कीप इट क्लियर, ये एग्जाम में आता है। व्हाट इज द यूजेस ऑफ जर्नल? आया हुआ एग्जाम में भाई, एक दफा नहीं कई दफा आया हुआ है। यूजेस ऑफ जर्नल, जर्नल या द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग जर्नल। नंबर 1 टू कीप अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, नंबर 2 टू पास एडजस्टिंग एंट्रीज, नंबर 3 टू करेक्ट एरर्स। 3 पर्पस है जर्नल के, 3 पर्पस है जर्नल के। नोट कर लें, बाद में परेशान नहीं होइएगा। नंबर 1 टू रिकॉर्ड unusual transaction like owner took furniture from the business for personal use. कौन सी बुक में लिखेंगे आप?
ओनर फर्नीचर उठा के घर ले गया, ना सेल्स जर्नल है, ना परचेज जर्नल है, ना सेल्स रिटर्न जर्नल है, ना परचेज रिटर्न जर्नल है, ना कैश बुक है, जर्नल जर्नल है। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जिसमें ना कैश आ रहा है, ना बैंक आ रहा है, ना गुड्स सोल्ड आ रहा है, ना गुड्स परचेज आ रहा है, ना गुड्स रिटर्न आ रहा है, इसको बोलते हैं, इसके अलावा बोलते हैं अनयूजुअल। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। क्यों सर? हर साल थोड़ी खरीदते हैं, 10-10 साल बाद, 20-20 साल बाद। जनरल में और क्या आता है? नंबर 1 अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, नंबर 2 एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज, बैड डेट की एंट्री, सेट ऑफ की एंट्री, डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की डबल एंट्री, ये सारी एंट्रीज कहां जाती हैं? जर्नल जर्नल में। ये सारी एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट वाली सारी डबल एंट्रीज, लोन इंटरेस्ट की डबल एंट्री किसी बुक में नहीं आती, जर्नल जर्नल में आती है। इसी तरह करेक्शन ऑफ एरर्स, इसी तरह करेक्शन ऑफ errors, correction of errors are not recorded anywhere, they are recorded in journal. Suspense account, suspense account is open if trial balance fails to balance. This means that the draft financial statements can be prepared, but they have errors. They have errors. Your accounts have errors. Suspense अगर account में है, इसका मतलब तुम्हारे में error है, तुम में, तुम्हारे accounts में error है। अगर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट है, आपके ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? सारे अकाउंट्स होते हैं। अगर उन अकाउंट्स में एक अकाउंट सेल्स, परचेज, कैश, मशीन, इक्विपमेंट के साथ साथ एक अकाउंट सस्पेंस भी है, इसका मतलब एरर है, एरर है तुम्हारे अकाउंट्स में, तुम्हारे अकाउंट्स में एरर है। So errors affecting the balance of the trial balance, correctly making entries with suspense account. Okay. Errors which do not affect the trial balance, मैंने आपके लिए नाम लिख दिए हैं, इनकी डेफिनेशन या इनकी एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए, ये आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे। ये एग्जामिनर पूछता है MCQs में, which of the following will not affect trial balance, which of the following will affect the trial balance. तो omission, commission, principal, transposition, reversal, compensating, original entry, ये सारे एरर रहते हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता। एरर के MCQ सबसे ज्यादा ट्रिकी होते हैं, याद रखिएगा मेरी बात, एरर्स के MCQ सबसे ज्यादा ट्रिकी होते हैं, हार्ड टू आइडेंटिफाई होते हैं। टर्मिनोलॉजी बहुत करीब करीब होती है इसकी, अफेक्टिंग, नॉन अफेक्टिंग, अफेक्टिंग और नॉन अफेक्टिंग, और सेंटेंस पढ़ पढ़ के समझ नहीं आ रहा होता कि यार अफेक्ट कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा, कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा। तो 3 एरर कर रहे होंगे, एक नहीं कर रहा होगा, या 3 नहीं कर रहे होंगे, एक कर रहा होगा। you have to identify odd man out ना, 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है, जो ऑड होगा इन चारों में, जो चारों से बाकी तीनों से मुख्तलिफ है, वो आइडेंटिफाई करना होता है आपको। एरर्स के MCQ सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है। So that's it for the first session. Thank you very much for joining.